مال و دولت کے متعلق احکام۔ بچوں، پہلے درس میں یسوع نے ہمارے طرز عمل پر بات کی تھی اور توجہ کا مرکز یہ تھا کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اب ہم یہ جاننے کو ہیں کہ روزمرہ زندگی کے متعلق یسوع کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ یسوع کی طرف سے وہ درس ہے جو ہمیں روزمرہ زندگی کے لیے سیکھنا ہے۔ مال و دولت کے متعلق احکام۔ پہلے تو یسوع نے مال و دولت کے متعلق بات کی۔ یسوع نے فرمایا، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو تو اس کے لیے خدا سے محبت رکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خدا کی محبت اور دولت کی ہوس کبھی کسی کے وجود میں اکٹھی بس ہی نہیں سکتی۔ یا آپ کے دل میں دولت کی ہوس ہوگی یا اس میں خدا کا وجود قائم ہوگا۔ آئیں دیکھتے ہیں یسوع نے اس مد میں کیا فرمایا۔ دولت مند آدمی خدا کی بادشاہی میں کیوں کر داخل ہوگا؟ یسوع کا فرمان، مرکز 10 باب 17 سے 20 آیت۔ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ مرکز 10 باب 21 سے 24 آیت۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ متی 19 باب 24 سے 25 آیت۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ مرکز 10 باب 27 آیت۔ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔
बच्चों, इस वाकया में एक ऐसे खुश अतवार नौजवान का जिक्र है जो बचपन ही से मूसा की शरीयत और अहकाम की पूरी पासदारी करता था। यसू उसे पसंद करता था। उसे बेहतर बदला देने की खातिर यसू ने उससे कहा कि अपना सब कुछ बेचकर गरीबों के हवाला कर और मेरे पीछे होकर मेरा शागिर्द बन। बच्चों, जब नौजवान ने ये बात सुनी, उसका मुंह लटक गया, क्योंकि नहायत दौलतमंद जो था। बच्चों, ये नौजवान तो ताबेदार था, अच्छे तौर तरीकों का हामिल, मालदार और एक ऑफिसर भी था। दौलत, रुतबा, शोहरत, यानी वो सब कुछ उसके पास था, जिसकी ख्वाहिश अमूमन हर नौजवान के दिल में होती है। ये बात गैर मामूली थी कि वो बचपन ही से मूसा की शरीयत पर अमल पैरा था। इसमें हैरानगी की कोई बात ना थी कि जब यसू ने उसे देखा तो खुश हुआ। बच्चों, अगर आप नौजवानी ही में खूब दौलतमंद हों, मशहूर व मारूफ हों, मुआशरा में आला मकाम रखते हों, तो क्या मजे में ना होंगे? मगर ये बात यसू की नजर में काफी ना थी, क्योंकि यसू उसे अजीम तारी नामो इकराम का वारिस बनाना चाहता था, बशर्त ये कि वो अपने सारे मकान, जमीनें और जेवरात बेचकर गरीबों में बांट दे। ये मत सोचे खाएंगे क्या, सोएंगे कहाँ। सब बातों से बेपरवाह हो जाए, यसू के पीछे हो ले। हम यसू की खातिर जो कुछ भी तर्क करते हैं, यसू सब जानता है, खुदा अबदी बरकतों से माला माल कर देगा। अगरचे हमारे लिए अपने ऐशो आराम से दस्तबरदार हो जाना नहायत ही दुश्वार मरहला है, क्योंकि हमारी आंखें अबदियत को नहीं देख सकती। यसू ने ये नहीं कहा था, उसके सब पैरोकारों पर लाजम है कि तहीदामन हो। यसू तो ये कह रहा था कि जो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए मालो दौलत पर भरोसा करते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाही का हसूल दुश्वार है। ये किसी के बस की बात नहीं कि मुआशरती हैसियत, शोहरत, दुनियावी मालो दौलत के बल पर अबदी हयात में हिस्सा पाए। एक ऐसा फर्द जो अपने मालो जर पर भरोसा रखता हो, वो खुदा पर भरोसा नहीं रख पाएगा। आप दौलत की चमक से तरह तरह के खाने खरीद सकते हैं, इमारतें, कारें, रंग बिरंग लिबास खरीद सकते हैं, मगर जब आपके पास खुदा हो, आप खुदा के बदले इन दुनियावी चीजों का कुछ भी नहीं खरीद सकते। हम खुदा को देख तक नहीं सकते, क्योंकि हम खुदा को देख नहीं सकते, इसीलिए उस पर भरोसा करना मुश्किल बात लगती है। इसी वजह से यसू ने फरमाया, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। बच्चों, सुई के नाके से क्या कहना मकसद था? दरअसल पुराने जमाना में किसी बड़ी इमारत के बड़े दरवाजा में एक छोटा रास्ता बनाया जाता था। जब किसी ऊंट को इस छोटे रास्ता से गुजरना होता, ऊंट पर लदा सब बोझ नीचे उतार दिया जाता। अगर ऊंट से मवाजना करते हुए देखा जाए तो किसी दौलतमंद इंसान के लिए ये बात कहीं ज्यादा मुश्किल है कि अपने ऊपर लदा माल का बोझ उतारे और उस छोटे रास्ता से होता हुआ
खुदा की बादशाही में दाखिल हो। इसीलिए शागिर्द कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है? इस पर यीशु ने जवाब देते हुए कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। यानी हमारी फितरत में ये बात शामिल है कि हम आंखों से नजर आने वाली धन दौलत पर भरोसा करना पसंद करते हैं। अगर हम यीशु से मदद मांगे, उसकी कुदरत हमारी मदद और रहनुमाई करेगी। और हम दौलत और हर किस्म की मादी अशिया के लिए बेकरारी छोड़ देंगे। यीशु हमारे दिलों को तहफ़्फ़ुज़ और सुकून के उस एहसास से लबालब कर देगा जो आसमानी बाप के वजूद से जारी होता है। तब हमारे वजूद में मालो दौलत की हवस के लिए कोई गुंजाइश ही न रहेगी। जब हमारे सुकून व तसल्ली का जरिया माल नहीं रहेगा, तो फितरी तौर पर हम अपने वजूद की खूबियों या खामियों को अमारत के तनाजर में नहीं जांचेंगे। क्या आपको ज़काई याद है? जब महसूल लेने वाले ज़काई का दिल यीशु की मोहब्बत देखकर छलक पड़ा, तो उसने क्या किया? और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ। लोका 19 आयत। ऐसे वक्त यीशु की भरपूर मोहब्बत पा लेने के एहसास ने ज़काई के दिल से दुनियावी मालो दौलत की हवस निकाल फेंकी। आए इस नौजवान ऑफिसर को फिर देखते हैं। बच्चों, क्या उस नौजवान ने यीशु से मदद चाही? नहीं। मौजूदा ऐश भरी जिंदगी से जुदाई के तस्वर ही से नडाल हो गया। बच्चों, पहले तो हमें अपनी ख्वाहिशों की पैरवी छोड़कर खुद को खुदा की ताबेदारी के लिए पेश करना होगा। तब ही वो हमारी बिगड़ी इंसानी मजबूरियों पर काबू पाने में हमारी मदद फरमाएगा। खुदा की ताबेदारी पूरे वजूद, पूरी ख्वाहिश से करनी होगी। तब अतामंदी खुदा के फजल और उसकी कुदरत से हमारे हिस्सा में आएगी। यीशु की जात से हमें खातिर ख्वाह फजल और कुव्वत मयसर आएगी कि हम अपने वजूद में बसी सारी गुनहगार फितरत पर हावी हो पाएं। हमारे दिल खुदा की राहों पे चलने की जुस्तजू में रहें। खुदा के हजूर ये बात नहायत फरहत अंगेज होती है। बेवा का नजराना, मरकस 12 बाब 41 से 44 आयत। फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं, और बहतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी 1 धेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतात से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ उसका था, यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। बच्चों, हर किसी की दौलत का हिसाब तो खुदा के पास है।
कुछ लोग पैदाइशी दौलतमंद होते हैं, उन्हें महंगे स्कूलों में पढ़ने, महंगे होटलों में दादे ऐश देने के मौके हासिल होते हैं। बाज औकात यूं भी होता है, किसी कलाश का खाना दौलतमंदों के घरों में पलने वाले कुत्तों की खुराक से भी गया गुजरा होता है। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ज़हीन होते हैं, मगर कुछ बुरी याददाश्त के मालिक और कुछ कुंदज़ेन भी होते हैं। खुदा ने हर किसी को मुख्तलिफ पहचान दी, किसी को माशरती हैसियत, किसी को धन दौलत, और किसी के हिस्सा में हिकमत व दानिश। खुदा देखना चाहता है हम उसकी दी हुई नेमतों का क्या इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में, यानी फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं। खुदा देखना चाहता है हम अपनी जिंदगी के दिनों और उसके दिए मालो दौलत को किस तरह खर्च करते हैं। क्या आपको खुदा का बरकत देने का असूल याद है? यानी जिसके पास है उसे दिया जाएगा। बेवा के पास अपनी जिंदगी की जरूरतों के लिए जो कुछ भी था वो सब दे डाला और खुदा पर भरोसा करके जीने को तैयार हो गई। चुनाचे खुदा की नजर में मालदार ठहरी। खुदा ने उसे आसमान पर खूब नवाजा। खुदा ये नहीं देखता कि हमने कितना दिया या कौन सी कुर्बानी गुजरानी, मगर वो ये जरूर देखता है कि हमने अपने लिए क्या बचाया। आला हैसियत नौजवान बहुत से ऐसे काम करता था जो खुदा के लिए पसंदीदा थे, मगर उदास होकर यसू का साथ छोड़ गया। वो अपनी सारी मिल्कियत से लिपट कर रहना चाहता था। कुछ दे डालने का तसव्वुर तक मुहाल था। खुदा की नजर में यही गुर्बत है, क्योंकि वो खुदा के हाथों कुछ लेने पर तैयार ही नहीं था। आए मालो दौलत के हवाला से यसू का एक और फरमान सुनते हैं। खुदा की नजर में गरीब बेवा के माल की निस्बत अमीर आदमी की दौलत हेज थी। आए देखते हैं यसू ने क्या कहा। अहमक मालदार की तमसील। एक शख्स यसू के पास आया कि खानदानी विरासत की तकसीम में यसू उसकी मदद करे। यसू ने इस मौका को लोगों की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया। लोका 12 बाब 15 से 21 आयत। और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है
जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। बच्चों, ये मालदार शख्स अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा अनाज और दौलत जो सालों उसके काम आती जमा कर रखने का शौकीन था, मगर वो खुदा की नजर में मालदार नहीं था, क्योंकि उसने महज अपने लिए बहुत कुछ संभाल रखा था। ना तो लोगों को कभी कुछ दिया और ना ही खुदा के हजूर कुछ पेश किया। चुनांचे उसका कुछ भी खजाना आसमान पर नहीं था। यसू ने फरमाया, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? बच्चों, दौलतमंदी या गुर्बत की हकीकत के मुतल्लिक खुदा के नजरियात हम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। चुनांचे यसू ने हमें सिखाया कि मालो दौलत के मामलात कैसे निपटाने होंगे। यसू ने फरमाया, अपना खजाना आसमान पर जमा करो। मत्ती 6 बाब 19 से 20 आयत। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। बच्चों, क्या आप समझ गए? जब हम नजराने पेश करते और अतियात जमा करवाते हैं तो दरअसल ये सब कुछ आसमान पर मौजूद अपने बैंक अकाउंट में भिजवा रहे होते हैं। चर्च में अतियात जमा करवाए जा रहे हों या जरूरतमंदों को कुछ दिया जा रहा हो, यसू इन सब चीजों को आपके लिए बैंक में जमा कर लेता है। चुनांचे जितना ज्यादा आप देंगे उतना ही ज्यादा आसमान पर आपका ढेर बढ़ जाएगा। यसू की नजर में असल मालो दौलत यही है। दुनिया का सारा मालो जर आर्जी है, छिन जाने को है। सिर्फ दिली खुशी के नजराने और जरूरतमंदों को दिए गए अतियात ही वो खजाना है जो कभी छीन नहीं सकता। ये सब यसू के पास जमा है। यसू ने मालो दौलत के हिसाब का ये मुख्तलिफ अंदाज हमें किस लिए सिखाया? क्योंकि इंसान सिर्फ एक ही मालिक की खिदमत कर सकता है। यसू ने फरमाया, मत्ती 6 बाब 24 आयत। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। यसू ये बात खूब गहराई से समझाता रहा कि हम दुनियावी धन दौलत और ऐश परस्ती की जितनी ज्यादा हवस रखेंगे, हमारे दिल से खुदा की मोहब्बत और उसका डर खौफ उतना ही दूर हटता जाएगा। मत्ती 6 बाब 21 आयत। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। यूहन्ना 6 बाब 27 आयत। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। अगर हम इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि हमारे सब नजराने और अतियात यसू के पास आसमान पर महफूज हैं, तब यसू हमारी सोचों में बसा रहेगा और हम अपनी पूरी इस्तात से उसकी पसंद पर चलने की जुस्तजू करेंगे। यसू हमसे यही उम्मीद करता है कि हम आने वाली जिंदगी में उन बेशुमार नेमतों का लुत्फ उठाएं
जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखी हैं। क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने का ख्वाहिशमंद है। अगर हमारे जहनों में परेशानियां ही बसी रहें, यानी हमारे पास दौलत के ढेर क्यों नहीं? हम मजीद दौलत कैसे इकट्ठी करें? हम उन जैसे किस तरह बन जाएं जो हर महफिल में नित नए लिबास पहनकर आदमकते हैं। क्या मेरी गुर्बत की वजह से लोग मुझे कमतर समझते हैं, वगैरह वगैरह। जब हम अपने जहनों में ऐसी सोचें बसा लेते हैं, तब हो सकता है कभी हम इसी दौलत, दुनियावी ताकत और इख्तियार की धुन में यसू के नाफरमान हो जाएं। ऐसे में हमारे दिलों से खुदा की मोहब्बत बिल आखिर मादूम हो जाएगी और यसू मुकम्मल तौर पर ऐसे इंसान की जिंदगी से किनारा कर लेगा। बच्चों, यसू के लिए ऐसी सूरत हाल बेजार कुन है। यसू ने फरमाया, जिसके साथ मैं नहीं, उसके साथ हयाते अबदी भी नहीं। शायद हम दौलत के ढेर लगाकर बैठ जाएं, मगर हयाते अबदी से महरूम हो जाने पर तमाम दुनियावी धन दौलत बेमायनी है। यसू ने फरमाया, मरकस 8 बाब 36 से 37 आयत। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? बच्चों, दुनिया का कोई रुतबा या नेक नामी यसू के साथ आसमान की बादशाही में हमेशा हमेशा तक रहने से बढ़कर नहीं है। यसू जानता था अगर हम खाने पीने और पहनने ओढ़ने की सोचों में हद से ज्यादा उलझे रहे, तब आज नहीं तो कल उससे जुदा हो जाएंगे। चुनांचे यसू ने हमें बेजा दुनियावी फिक्रों और परेशानियों से दूर रहना सिखाया। बेजा फिक्रों और परेशानियों से दूर रहने का दरस। खाने पीने या पहनने ओढ़ने का फिक्र ना करें। यसू ने फरमाया, लूका 12 बाब 6 से 7 आयत। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियां नहीं बिकती? तो भी खुदा के हजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। लूका 12 बाब 22 से 24 आयत। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौवों पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते, ना उनके खत्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। लूका 12 बाब 27 से 31 आयत। सूसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा? और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं।
लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। लोका 12 बाब 32 से 33 आयत। ए छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहाँ चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता। यसू के कहने का मतलब ये नहीं कि आप भाग दौड़ तो खूब मचाएं, मगर अपने मुआशी मामलात की मंसूबाबंदी ना करें। यसू ने जो कहा उसका मतलब है परेशान ना हो। हम अपने मकबूजात पर जितनी ज्यादा मंसूबाबाजी करेंगे, मुस्तकबिल के मुतल्लक उतने ही ज्यादा परेशान और उलझते जाएंगे। इन मामलात पर जितनी ज्यादा भाग दौड़ मचाएंगे, उतनी ही ज्यादा महरूमी और कम मायगी का सामना करना होगा। यूं हम अदमे तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते जाएंगे। यसू नहीं चाहता कि हम परेशानियों और उलझनों में फंसे रहें। आज के लिए आज का दुख काफी है। यसू ने हमें सिखाया, लोका 12 बाब 25 से 26 आयत। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? मत्ती 6 बाब 34 आयत। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। बच्चों, यसू चाहता है हम इस बात से बिल्कुल लापरवाह हो जाएं कि आने वाले दिनों में हमारे पास कितना माल होगा। यीशु ये बातें जानता है। यसू ने फरमाया, कोई नहीं जो फिक्र करके अपनी उम्र का 1 घंटा ही बढ़ा सके। चुनाचे इन बातों पर परेशान होना छोड़ दें। खुदा तो हवा के परिंदों तक की देखभाल करता है। बियाबान की फूल पत्तियों और घास फूस तक का मुहाफिज है। फिर कैसे हो सकता है कि हमें छोड़ दे? यसू का कहना है, हम परेशान होकर किसी मसला का हल नहीं निकाल सकते। हम यसू के नाम में हर रोज फतहमंद जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। बाकी सब मामलात यसू पर छोड़ दें। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, उस नौजवान आदमी के पास बहुत सा मालो दौलत था, नेक नामी थी और वो कम उम्री ही में एक बड़ा ऑफिसर भी तो था। प्यारे बाप, मुझे उस पर बड़ा रश्क आ रहा है। शायद उसके रिश्तेदार भी खूब असरो रसूख रखते हो, उसका सारा खानदान भी खूब मालदार हो, मगर यसू ने फरमाया उसका खुदा की बादशाही में दाखिल होना ऊंट के सुई के नाके से गुजर जाने से भी बढ़कर दुश्वार है। प्यारे बाप, मैं सोचता हूँ अगर मैं एक अमीर आदमी होता, अपने सारे घर और जमीनें बेचकर सारी रकम गरीबों में बांटकर कोड़ी कोड़ी को मोहताज होकर तेरे पीछे चलना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता। प्यारे बाप,
मोहब्बत, तेरी खुशी और तेरी तरफ से बख्शा दिली सुकून मेरी जिंदगी को अबदी राहत से भर ना दे, और मेरे दिल से मालो जर की हवस ज़काई के दिल की तरह उखाड़ ना फेंके, वरना धन दौलत को छोड़कर तुझसे मोहब्बत रखना कितना मुश्किल काम है। प्यारे बाप, जिंदगी में कभी मुझे मालो दौलत मिल जाए तो मेरी मदद फरमाना, कहीं मैं दिल से तुझे बुलाकर तेरी जगह इस मालो जर की हवस ना बसा लूं। मेरी मदद फरमा के मैं अपने दिल में सबसे बड़ा मकाम हमेशा हमेशा तक तेरे लिए मखसूस रखूं। ऐ बाप, मेरी जेब में पैसे हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मगर खाली जेब बहुत परेशान हो जाता हूँ। जैसे इस वक्त भी मेरी जेब में कुछ नहीं। मेरा ख्याल है अगर जिंदगी में बहुत सी दौलत ना भी मिले तो कोई परेशानी नहीं होगी, मगर बिल्कुल खाली जेब के मजे का एक समोसा तक ना ले पाऊं, ना कोई नया खिलौना और ना ही खूबसूरत सा कोई बैग, ये तो बहुत परेशानी की बात है। मुझे ये भी मालूम नहीं कि बड़ा हो जाने पर कभी कम पैसों की इस महरूमी से जान छूटेगी या नहीं। खाने पीने की चीजें ले सकूंगा, स्कूल की फीस ही अदा कर पाऊंगा या नहीं। प्यारे बाप, मेहरबानी से मेरी मदद फरमा के ऐसी चीजों की तलब में उड़ते रहने से बच जाऊं, दूसरों से हसद करना छोड़ूं। मेरी मदद फरमा कि हर दम तुझे पेशे नजर रखूं, तेरी मर्जी की राहों पे चलूं। तेरी मदद ही से मुमकिन होगा फजूल चीजों से बेपरवाह होकर तेरी बरकतों, तेरी रहनुमाई का फजल पाऊं। प्यारे आसमानी बाप, मेरी मदद फरमा, कहीं ईमान से आरी फरद ना हो जाऊं। अगरचे मेरा ईमान बहुत ही कम है, मगर यसू का कहना है जब तक मेरे दिल में राई के दाने जितना जरा सा ईमान भी होगा, मैं भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसे कामों में आसमान की बादशाही की कुव्वत असर दिखाती है। प्यारे आसमानी बाप, मेरे इस जरा से ईमान में बरकत डाल, मेरी मदद फरमा के तेरे अजीम वादों की शान देखूं। यसू के नाम में मांगता हूँ, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। मत्ती 6 बाब 21